Praise him who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. For our meditation this morning, I have chosen from Acts of the Apostles, chapter 20, verse 33. I coveted no one's silver or gold or apparel. Good morning, friends. When we are in the ministry and mission of the Lord, we should never expect anything from people, for the Lord is our provider. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is no expectations. This was Paul talking to the elders of Ephesia, or Ephesian elders. He was telling them about the ministry that he was involved in and the way that he had to go through challenges in the ministry. And he was speaking about how there may be many people who may come like wolves and speak of so many philosophies, understandings, and may disturb them or disturb their belief or faith. All that Paul was saying was, what he was telling was the gospel of Jesus Christ, and all he meant was that each one of them is to be saved. And then he goes on to say that he coveted nothing, nor gold, nor silver, or apparel, anything from them. He never expected anything from them. Friends, this is a very important thing that we need to understand. Any one of us who are in the ministry and mission, we need to do what the Lord has commanded us to do, to serve the Lord, to preach the word, to strengthen the people in the gospel, and never expect anything from people. For all that we want and all our desires will be met from our Lord. Never expect from people. Never wait for it. Our role or responsibility is to minister, is to share the word, is to be in the service of God, and never to expect. But God will provide, and God will send through different ways, through different people in a different point of time. All we need to look to is to God and not from anyone at all. And this is what Paul is very clear about. All he did was to minister, and he was in the mission that God had sent him for. So, whatever we do, let us look to God and no one else. Gracious God, our Heavenly Father, thank you, Lord, for you are our provider. Help us to serve you faithfully and to look to you for all our needs. Be with us, O Lord, in Christ's name we pray. Amen. तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 20 और उसका 33वां वाक्य। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर के विशेष कार्य को करते हैं और उसकी सेवकाई में होते हैं, तब हम लोगों से कोई अपेक्षा ना रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रयोजन करने वाला है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कोई अपेक्षाएं नहीं। पौलुस अफिसियों के प्राचीनों से बात कर रहा था। वे उन्हें बता रहा था अपनी सेवकाई के बारे में और उन चुनौतियों के बारे में भी बता रहा था जिसका सामना उसे अपनी सेवकाई के दौरान करना पड़ा। और वे बात करता है कि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो भेड़िए की नाई होते हैं और वे विभिन्न प्रकार के दर्शनों के बारे में बात करते हैं। वे फर्क तरीके की सोच को लेकर आते हैं और उनके विश्वास को डगमगा सकते हैं। वो सिर्फ ये समझा रहा था कि वह यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। उसका अर्थ यह है कि वे चाहता था कि उनमें से प्रत्येक बचाया जाए, यानी उद्धार पाए। और वे आगे बढ़कर कहता है कि उसने किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखी, ना सोने की, ना चांदी की, ना ही कपड़े लत्तों की, और उसने लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखी। मित्रों, ये जानना बहुत जरूरी है और हम सभी को ये समझना चाहिए कि जो कोई
परमेश्वर की सेवकाई में हैं, हम वही करें जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, उसके वचन का प्रचार करें और लोगों को बल दें और लोगों से कोई उम्मीद न रखें, क्योंकि हम जो भी चाहते हैं और हमारी सारी इच्छाएं वे हमारे प्रभु के द्वारा पूरी होती हैं। लोगों से कोई अपेक्षा न रखें और न ही किसी चीज का इंतजार करें। हमारा एक ही कार्य है कि हम सेवकाई करें, हम वचन का प्रचार करें, हम वचन को बांटें और प्रभु की सेवा में लगे रहें और किसी बात की इच्छा न रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए प्रयोजन करता है। परमेश्वर विभिन्न लोगों के द्वारा और विभिन्न तरीकों के द्वारा हमारे लिए चीजें मुहैया कराता है। हम सिर्फ परमेश्वर को निहारें और अपनी आंखें किसी और पर न डालें। और इस बात को लेकर पौलुस बहुत ही साफ है। उसने एक ही कार्य किया और वो है सेवकाई, और जो विशेष कार्य परमेश्वर ने उसे सौंपा था वह उसी में लगा रहा। इसलिए हम जो कुछ करते हैं हम परमेश्वर को ही निहारें और कहीं और ना देखें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू ही हमारा प्रयोजन करने वाला है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी सेवा निरंतर करते रहें और अपनी आवश्यकताओं के लिए सिर्फ तुझे निहारें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।